السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہلو جی ہیلو، جی ہلو جی نور حسن بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی آپ کون صاحب؟ جی میں محمد عمران بات کر رہا ہوں۔ اچھا، محمد عمران دیوبندی۔ جی جی جی، حضرت خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، کہاں ہو؟ گھر پہ ہی ہو کہیں؟ نہیں، کہیں آیا ہوا ہوں۔ اچھا حضرت، اصل میں ایک بات پوچھنی تھی مجھے۔ اصل میں آپ عقائد پہ زیادہ کام کرتے ہیں نا، تو آپ کو بات ہی پوچھنے آتے ہو یار؟ کتنا لوڈ لے کے پھرتے ہو سر پہ؟ ہاں جی، ارے کتنا لوڈ لے کے پھرتے ہو سر پہ، سوالوں کی گٹھری باندھ کے رکھتے ہو یار۔ اصل میں یار اب کیا کریں، آپ ہی ہو ہمارے جواب دینے کے لیے، تو اور میں کس سے جواب مانگوں؟ تو اصل میں دیوبندیوں کے سوال کا جواب دیتا نہیں ہوں جب تک کہ سامنے والے سے مجھے سوال کے جواب کی امید نہ ہو۔ مجھے بھی یہ اچھا، سوال اس کا کرنا مطلب ہے آپ کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ مطلب نکلا؟ وہ تو چھوڑو کہ آتا ہے کہ جاتا ہے کہ نہیں آتا کہ نہیں جاتا، وہ تو بات کی بات ہے۔ اچھا ہاں، تم مجھ سے جب بھی بات کرتے ہو تو ڈیبیٹ کے موڈ میں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھو یار، میری میرا ایک بھی بات سنو مطلب نور ہے حسن کہ میں بھائی، بھی تم سے کچھ دیکھو نور حسن بھائی میری ایک بات سنو۔ مجھے اصل میں آپ عقائد پہ زیادہ بات کرتے ہیں نا، تو اس لیے میں نے سوچا عقائد کے متعلق آپ ہی سے پوچھا جائے۔ تو میں نے سوچا یہ نور حسن صاحب سے بات کر لیتے ہیں حاضر ناظر پر، اور علم غیب پر ذرا تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا ہمیں۔ تو تم کیوں علم غیب پہ بات کرنا چاہتے ہو، مجھے یہ بتاؤ؟ ہاں جی، کیوں علم غیب پہ بات کرنا چاہتے ہو؟ اصل میں کچھ اشکال ہوا تھا، تو پھر میں نے سوچا کس سے پوچھیں اس اشکال کا جواب۔ پھر میں نے سوچا ہاں نور حسن صاحب ہیں، وہ عقائد پہ زیادہ مہارت رکھتے ہیں، عقائد پہ بات کرتے ہیں، تو انہیں سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا آپ سے پوچھیں گے۔ تو پوچھنا ہے یا اعتراض بھی کرنا ہے؟ دیکھو ایک میرا اعتراض ہے، تو وہی مجھے پوچھنا ہے، تو اس کا جواب مطلوب ہے۔ کیا اعتراض ہے آپ کا؟ میرا یہ ایک اعتراض ہے، ایک تو حاضر ناظر پر بھی ہے اور علم غیب پر بھی ہے۔ اصل میں پہلا ایک پر بات کرو، ایک پر بات کرو، جس کی بات کرنا ہے۔ چلو حاضر ناظر پر ہی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حاضر ناظر پر کر لو۔ اصل میں حاضر ناظر پر ایک قرآن پاک کی آیت ہے نور حسن بھائی۔ ہیلو، بولو۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے اچھا، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اچھا، اس آیت میں اللہ پاک نے مخاطب، یہاں تو مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی مخاطب، علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو مخاطب ترجمہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، ویسے تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور کہا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جو جھگڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے پروردگار کے بارے میں؟ کیا میرا یہ سوال ہے، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی حاضر ناظر تھے یا نہیں؟ تو اس آیت سے آپ سمجھے کیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں دیکھا؟ اس سے کیا سمجھے؟ دیکھا یا نہیں دیکھا؟ یہی تو مجھے اشکال ہے، آپ سمجھائیں گے نا؟ ابھی عقائد میں بات ہے کہ نا، عقائد کی بات ہے۔ پاک میں جتنے بھی علم ترا ہے جی، وہ ساری آیت علم ترا والی، جیسے علم ترا کیف فعل، اور جو یہ آپ نے آیت پڑھی ہے علم ترا کیف کچھ، اور اس کا آگے کیا بولا تھا، آپ نے کیا پڑھا تھا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم ٹھیک، جتنی بھی قرآن پاک میں علم ترا آئی ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب کی شہادت دے رہی ہے۔
इल्म गैब पर बात ही नहीं कर रहा हूँ, हाजिर नाजिर पर बात कर रहा हूँ। तो अगर गैब की बात नहीं बोल रहे हैं। तुमने तो जो सवाल किया है, ये आयत जो पढ़ी है, ये इल्म गैब की शहादत देने वाली आयत पढ़ी है, और बात कर रहे हो मुझसे तुम ये हाजिर कहाँ नाजिर। इल्म गैब यार? अच्छा, देखो एक मिनट, इसमें कहाँ इल्म गैब है? अंधा, गाय, गूंगा, तार लगाए, वो मैं क्या जो क्या कह रहा कैसे कैसे करके असल जो में लोग आप मिसाल देते हैं, हैं? असल जी में जी नूर जी। हसन भाई, आप तो मेरी बात समझे ही नहीं मुकम्मल मैं तौर पर। तुम्हारी बात समझ गया, तुम आयत नहीं समझे कुरान पाक की। यानी अल्लाह इसीलिए ताला तो आपसे फरमा रहा समझने है, ए आया हूँ। महबूब क्या तुमने नहीं देखा? यानी देखा, अच्छा, यानी देखा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अच्छा, समझे? इसका मतलब अल्लाह के जी 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 जी। बाकी एक मिनट, एक मिनट। अब ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया, अब हाँ ऊँट हाँ, पहाड़ के नीचे आ गया। सुनो ठीक है, सुनो मत सुनो। मारो, ठीक है, मारना अलम मत तरा कर। इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क, कि ए नबी क्या आपने नहीं देखा? यानी आपका मतलब ये कहने का कि देखा। अगर देखा तो अल्लाह को फिर आगे कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क़ाला इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत, ये जरूरत क्यों पड़ी अल्लाह को कहने की? जब अल्लाह ताला दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है, इसीलिए तुम्हारी अकल मारी गई है और तुम्हें कुछ समझ आता नहीं। हाय हाय नूर हसन, अकलें तो तुम्हारी ये आय छीनी है गई, हिजड़ों लोगों को वाली धोखा बोली, देते हो। ये आय है अकलें तो हिजड़ों वाली तुम्हारी बोली छीनी बंद गई करो। हैं। कैसे धोखा देते हो लोगों को? अच्छा अल्लाह अच्छा सुनो, कौन सा अच्छा कहाँ फिट करते हो? तुम्हें अच्छा, शर्म नहीं आती है? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें देखो शर्म भी नहीं मुसलमानों आती है? भौंकने लोगों लगा, को कहते हो कि नबी अकरम भागना मत कॉल काट के। हाजिर हैं, इल्म गैब रखते हैं। अगर आपके बकौल मान लिया जाए कि इससे इल्म गैब साबित होता है, तो फिर इल्म गैब अगर साबित होता है तो अल्लाह पाक ने फिर आगे क्यों कहा क़ाला इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युहयी व युमीत क़ाला अना उहयी व उमीत? फिर तो होना चाहिए ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अरे क्यों भाव भाव कर रही है? अरे अगर यार तसल्ली से बात करे तो बात अरे यार कर, वरना मुनाफिर तेरा फोन कॉल क्यों कट काटता करता है हूँ। यार? फोन क्यों काटता है? फोन क्यों मैं काटता है? तो डरता है मुझसे? कुत्ते की तरह भौंकने वालों से बात ही नहीं करता हूँ। हाय हाय, ये बोल अगर मुझे तो कुछ प्यार आता से बात चाहता है, करे, मैं भाग रहा हूँ। बोल। अगर प्यार से बात करे तो बात कर। अब यार ये बता, इसके बाद क्या मेरी बात का जवाब दे गाली कि देता है। अल्लाह के नबी तेरे सल्लल्लाहु को अलैहि मैं वसल्लम को तू हाजिर और नाजिर मानता है या नहीं मानता, ये बता। बिल्कुल नहीं मानता हूँ, बिल्कुल नहीं मानता। या बिल्कुल नहीं मानता है? अगर अल्लाह के नबी हाजिर और नाजिर नहीं है, हाँ ठीक है, तो हाँ, क्या ठीक है। सहाबा इकराम हाजिर और नाजिर हैं? कोई भी नहीं है। अच्छा, सहाबा इकराम अगर नहीं है तो क्या कोई जो वली हैं, है ना, ये हाजिर और नाजिर हैं? एक मिनट, रुक। तूने मेरे सवाल का जवाब दे दिया क्या? नहीं, सुनो पूछ रहा मेरे हूँ। सवाल का जवाब तूने दिया? अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दिया तूने? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से कहीं आ जा सकते हैं या नहीं अल्लाह की अता से? देखो, मेरा ये सवाल नहीं है नूर हसन फिर भाई, वही आप बात, मेरा सवाल समझे नहीं हो यार। मेरा सवाल आप समझे मेरे नहीं, मेरा इसी सवाल सवाल में, समझो। मेरे मेरा यही सवाल मेरा पहले सवाल है समझो। और यही मेरा जवाब है, इसी में वही जवाब जहालत मिल है। जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन भाईजान? और क्या हो रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है। और बताइए, सुबह तो आप बिजी थे बहुत जी बिजी थे सुबह। सुबह जी। हाँ, अच्छा, और बताइए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है। आप पहचान नहीं पाया? अरे आपको सुबह फोन करा था मैंने। हाँ सुबह आप, फोन करा था। सुबह फोन करा था आपको। हाँ जी। हाँ किया होगा पर हम्म। ध्यान नहीं रहा है मुझे। अच्छा, जी और बताइए। बस सब ठीक है। आपका मसला क्या है? मसलक तो हम मुसलमान हैं, मुस्लिम हैं हम। घुमा फिरा के मत बताइए यार, सीधा सीधा बोल दीजिए। मसलक हम मुस्लिम हैं, कुरान में लग रहा है कि मुस्लिम, समझे नहीं? तो चलो कॉल कट कर दो। क्यों? ऐसी इस टाइम में बात नहीं करता हूँ ऐसे लोगों से। अच्छे ऐसे लोगों से मतलब, ये तो कोई बात नहीं। बताओ, एक आदमी आपको फोन तो, करता है, आप कह रहे हो ये फोन नहीं, वो नहीं करता। हाँ कल दिन में बात करना या फिर चलो कल के बाद बात करना। ठीक है, तो इंशाल्लाह। हाँ ठीक है चलो आ गया।
यार नूर हसन ऐसे तो फोन काटता है और फिर वेटिंग चला जाता है और होल्ड कर लेता है फोन। यार जब जवाब नहीं आता तो बोल देना चाहिए ना मुझे जवाब नहीं आता है। कोई देवबंदी अभी तक पैदा नहीं हुआ जो नूर हसन को शिकस्त दे। अगर तू प्यार मोहब्बत की बात करे, ये दावे करना छोड़ दे, ये दावे करना छोड़ दे। तुझे कुछ नहीं आता ये बोल के कोई सिर्फ दावे करता है, प्यार मोहब्बत से अगर तू बात करे। मगर देख बात सुन अब अभी देख अभी जब मैंने तुझे फोन किया तूने फोन होल्ड कर दिया, फोन काटा तूने, फिर मुझ पर तोहमत लगाई, तूने फोन काटा और ऊपर से दावे करता है कोई देवबंदी। देख मैं साफ लफ्जों में कहता हूँ कोई भी रजा खानी आज तक पैदा नहीं हुआ जो उलमा देवबंद के अदना से तालिब इल्म का मुकाबला कर सके। ये मेरा दावा है। लेकिन जो तेरे झूठे दावे हैं ना ये गलत है। मेरे सवाल का जवाब दे, दावे छोड़। जो आज तक तू किसी ऑडियो में मुझे शिकस्त दे पाया है तू या तेरा कोई भी बड़ा आलिम? इब्राहिम फी रब्बी अनाताहुल्लाहुल मुल्क, इसका जवाब दे चल। तो इसका मतलब क्या समझ रहा है कि अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहिम, तो इससे क्या समझ रहा है? एक और किसी का कॉल आ रहा है, जरा उसको भी रिसीव करता हूँ। कौन है? कट गया। तेरा ही देवबंदर कॉल कर रहा है बार बार कोई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अच्छा ये बता, एक मिनट जहाँ पढ़ने का मौका है वहाँ तो तुम पढ़ते ही नहीं हो। ऐसे लोगों से मैं बात नहीं करता, तो बात नहीं करता। काट रहा हूँ तेरा कॉल, अब काट रहा हूँ। कह हेलो हाँ यार, कभी कभी दिमाग खराब होता है। ये फोन भी बेइज्जती करा दे आपके फोन में। अभी से कॉल ही नहीं लग रहा, बैल ही नहीं जा रही। कॉल कट गया उधर से, करता हूँ दोबारा। The number you have dialed is currently busy. बिजी बता रहा है। The number you have dialed is currently busy. अरे ये Please try later. ये आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी ये दिखलाएगा सुबह को कि कृपया नूर हसन कुछ समय पश्चात प्रयास करें। हाँ, लाइन पर रहो। आप जिस व्यक्ति से आपका फिर से कॉल लग गया क्या कहीं? एक मिनट। सद्दाम भाई लाइन पर रहो, इस देव के बंदर को लेता हूँ। ये साला मतलब देवबंदियों को लाइन पे लेके और मेरी ऑडियो को ये बताना चाहता है कि देखो बरेलवी भाग रहा है, समझे? मैं इसकी अभी छतरौल करता हूँ। मुसलमानों फैसला करना आप। इसने कहा कि अल्लाह के नबी मैं हाजिर और नाजिर नहीं मानता। बस फैसला आपको करना है, मैं दिखा दूंगा। लगा कान पर हाँ हेलो। हाँ तूने मेरा कॉल क्यों काटा रे? देव बंदरों को तू लाइन पे लेके ये दिखाना चाहता है कि देव नूर हसन बरेलवी जो है वो कॉल काट के भाग गया। ये देखना खुद लगाता है कॉन्फ्रेंस दूसरों को। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिया है कॉन्फ्रेंस पे, इसलिए लिया है कि तेरा कॉल कर रहा था मैं, तू बिजी आ रहा था, समझा? और तू कॉन्फ्रेंस पे है, तू ये दिखाएगा लोगों को कि देखो नूर हसन बरेलवी कॉल काट के भाग गया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल अस्तगफिरुल्लाह बाद में पढ़, पहले तू अब मुझे ये बता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से कहीं आ जा सकते हैं या नहीं? मेरा ये सवाल नहीं है, पहले मेरे सवाल मैं पूछना चाहता हूँ ना। देख ये हाजिर और नाजिर में शामिल है या नहीं? मैंने जो ये हाजिर और नाजिर में सवाल शामिल है या नहीं? मैंने तो वो बात कह दी जो लोगों देख हाजिर और नाजिर लोगों को समझ में नहीं आता। मैं तो कह रहा हूँ, मैं आवाम के लिए काम करता हूँ ना। मैं तो कह रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक से कहीं आ जा सकते हैं या नहीं? हाँ नाम है जवाब दे, हाँ नाम है जवाब दे, हाँ नाम है जवाब दे, हाँ नाम है जवाब दे,
हाँ नाम है, जवाब दे। ये हाजिर और नाजिर, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी कब्र मुबारक से कहीं आना और जाना हाजिर और नाजिर में शामिल है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आ जा सकते हैं? मैं कह रहा हूँ कैसे आ जा सकते हैं? ख्वाब में नहीं आ जा सकते। ख्वाब में। हाँ, मैं हकीकत में बोल रहा हूँ, हकीकत में आ जा सकते हैं। आपके नजदीक आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की अता से मेरे नबी दुनिया भर में जहाँ जाना चाहें, जिस अपने उम्मती के पास जाना चाहें, जिसकी किस्मत को जगाना चाहें, जा सकते हैं। आपके पास आए कभी? मैं कह रहा हूँ तुम्हारा क्या नजरिया है, तुम्हारा क्या अकीदा है, वो बताइए। अल्लाह के नबी आ जा सकते हैं या नहीं? मैं कह रहा हूँ तेरे पास आए कभी? अल्लाह के बहुत से वली हैं यार समझे, अल्लाह के बहुत से वली हैं। मैं तुझे जो कह रहा हूँ वलियों पर कहाँ जा रहा है यार, नबी को छोड़कर? फिर वही बात, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रहा है तो वलियों पर कहाँ जा रहा है? तुम बता दो ना अभी। अच्छा एक मिनट, तेरा ये सवाल है क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अतहर के अंदर से इधर उधर जा सकते हैं या नहीं? मैंने इनकार किया हकीकत के ऊपर, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास कभी आए या नहीं? अच्छा एक मिनट, तो अगर आपका ये अकीदा है कि नहीं आ जा सकते और मेरा अकीदा ये है, तो मेरे ऊपर शरीयत का हुक्म क्या लगेगा? तो अपना बता। मेरे ऊपर शरीयत का हुक्म क्या लगेगा वो बताइए आप। आपके पास कभी आए या नहीं? फिर वही बात, मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से जिस जगह जाना चाहें, अपने जिस उम्मती के पास जाना चाहें, अपने जिस उम्मती की किस्मत को जगाना चाहें, जा सकते हैं। ठीक है, मेरा ये अकीदा है। हुक्म क्या लगेगा मेरे ऊपर बताइए? कुफ्र का हुक्म लगेगा, शिर्क का हुक्म लगेगा, क्या हुक्म लगेगा? हाँ ठीक है, पहले बताओ कि आपके पास कभी आए हैं, फिर मैं हुक्म फिर वही बात, पहले आप हुक्म लगाइए, जब नहीं आ सकते तो हुक्म लगाइए। देखो चैनल, जब नहीं आ सकते तो हुक्म लगाइए। देखिए अभी तक दुनिया देवबंदियत में किसी औरत ने कोई बच्चा पैदा नहीं किया जो नूर हसन से बात कर ले। हाँ, तू कॉल कट कर करके दुनिया वालों को ये दिखाना चाहता है कि नूर हसन बरेलवी भी भाग गया। तेरे जैसे कितना है और कितने चले गए, और इसी वजह से मैंने कॉन्फ्रेंस में लिया है कि तू मुझे ये दिखाता कि देखो नूर हसन बरेलवी कॉल काट के भाग रहा है, और तुम लोग लाइन पर थे और मेरे कॉल को कट कर रहे थे। तुम लोग भागे मत। देखो मुसलमानों, छतरोल हो गई। शर्म की चीज नहीं है। देखो मुसलमानों, इसकी शिकायत है। मुसलमानों देखो इसकी शिकायत है, ये हुक्म नहीं लगा रहा है। हुक्म लगा ना, हुक्म लगा, हुक्म। लोगों को बेवकूफ अब मैं तेरा कॉल फिर काट दूं। तुझे न कुरान का पता है, न तुझे हदीस का पता है, न तुझे तफसीर का पता है, न तुझे उसूलों का पता है। मैं कह रहा हूँ मुझे तो कुछ नहीं पता है, तुझे इससे क्या लेना देना? मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता है। तू हुक्म लगा, को गुमराह कर रहा है। तू हुक्म लगा, बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि उम्मत को गुमराह कर रहा है। हुक्म लगाइए। बुजुर्गान दीन की तोहमत लगाते हैं। मेरा अकीदा है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस उम्मती के पास जाना चाहें जा सकते हैं। अल्लाह की अता से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इजाजत दी है, इख्तियार दिया है। तू बता मेरे ऊपर हुक्म क्या लगेगा? मेरा तो यही अकीदा है, तू बता हुक्म क्या लगेगा मेरे ऊपर? अच्छे एक मिनट रुक नूर हसन, रुक। हुक्म ये रुक करना बंद कर, तो मुझे बता मेरे ऊपर हुक्म क्या लगेगा? ये रुक करना बंद कर। हुक्म लगता है, पहले हुक्म लगा हुक्म लगा। अच्छा पहले हुक्म लगता है। मुसलमानों इसमें हिम्मत नहीं है जो ये हुक्म लगा दे मेरे पर। हाँ मुसलमानों हाँ, ये है देवबंदरों का छतरोल। तेरी बेवकूफी का तो क्या? अरे बेवकूफी तेरी है कि मेरी है? बेवकूफी तेरी है कि मेरी है? बदनाम कर दिया। बेवकूफी तेरी है कि मेरी है? मैंने तो इतना खुलासा करके बोला है, तेरी दुनिया देवबंदी कोई मुफ्ती नहीं बोल सकता। भी अहमद रजा खान फाजले बरेलवी जाहिल। देखो मुसलमानों आ गया जहालत पर, रख दिया। मुसलमानों आ गया जहालत पर। ये वो देव का बंदर है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाज़िर नहीं मानता। कुरान पाक की आयत का इनकार है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए महबूब, हमने आपको हाजिर और नाज़िर बनाकर भेजा। और खुद इसने कुरान पाक की वो आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, क्या ए महबूब तुमने नहीं देखा? यानी देखा। मैंने इसको जब कुरान पाक की आयत, मैं कह रहा हूँ तू मेरे ऊपर हुक्म लगा। मेरा तो यही अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की अता से
जहाँ जाना चाहें, जिस उम्मती के पास जाना चाहें, जिस उम्मती की किस्मत को जगाना चाहें जगा सकते हैं, जा सकते हैं। बता तेरा ये अकीदा है कि नहीं कि हुजूर किसी जगह जा सकते हैं या नहीं? इसकी दलील दे के आ सकते हैं। फिर वही बात, तू हुक्म लगा मेरे ऊपर, दलील देना यार, बिना हुक्म लगा ना। हाँ देखो मुसलमानों, ये लगा ही नहीं सकता। मैंने कहा था ना कि ये हुक्म नहीं लगा सकता। आते ही नहीं है तो मैं कैसे हुक्म लगाऊं? अच्छा चल, नहीं आते हैं, नहीं आते हैं ना, ये तो तेरा अकीदा, मेरा थोड़ी तो मेरा अकीदा है तो मेरे ऊपर हुक्म क्या लगेगा वो बोल। दलील दे पहले, दलील। फिर वही बात, दलील तो बाद में दूंगा ना, पहले हुक्म क्या लगेगा वो बोल। पहले दावा होता है, फिर दलील होती है, उसके बाद हुक्म लगता ला है। हौला वला। दलील दे। देखो मुसलमानों, कितनी साफ सुथरी मैंने बात कही है, कितनी साफ सुथरी बात कही है। अब अगर अब तू एक कितना बड़ा इंटरनेशनल अब तू एक बात और सुन ले, ड्राइवर हंसने से काम नहीं चलेगा चैनल चमकाने, अपना चैनल ना। चमकाने के लिए बिल्कुल नहीं, लोगों को बनाता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये झूठ बोलना बंद कर। अपना चैनल चमकाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाता है। तो एक रक्षा ड्राइवर अपने मुद्दे पर आ, अपने मुद्दे पर आ। मैंने कुरान पाक की मैं तो उसी मुद्दे पर हूँ। तूने हाजिर और नाजिर पर बात करने की कोशिश की, नूर हसन, तूने हाजिर और नाजिर पर बात करने की कोशिश की और तूने वही आयत पढ़ी कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए महबूब क्या आपने ना देखा या नहीं देखा। ड्राइवर पी कर आया है, ये क्या बता रहा है, क्या आपने ना देखा? अरे तो पी कर तूने ही तर्जमा किया था, तू पी के आया, तू पी के आया है। अलम तरा इलल्लज़ी, तुम्हारे लिए शराब की इजाजत मिली हुई है, तुम्हारे लिए शराब की इजाजत मिली हुई है बे। तुम्हारे मुल्लाओं ने तुम्हें शराब की इजाजत दी है, ज़िना की इजाजत दी है, बगैर वुजू के नमाज की इजाजत दी है। मुझसे बोलेगा साले, मुंह में बरेली शरीफ का बांस डाल दूंगा, ठोक दूंगा, समझा? लूटी गालियों पे आ गया। बरेली शरीफ का बांस ऐसा ठोकूंगा देखता भी रहेगा। हुक्म लगा, हुक्म। ये है नूर हसन। तेरी दुनिया देवंदियत के जो छक्के छूट गए, पसीना आ गया है, हिम्मत है तो हुक्म लगा। अगर कुछ इल्म है, कुछ दम खम है तो हुक्म लगा मेरे ऊपर। बस मेरा अकीदा मैंने बोल दिया, तू कहे कि नहीं ये तेरा अकीदा, तेरा ही अकीदा है, तेरे तो हुक्म लगा ना मेरे ऊपर, हुक्म लगा। ये तेरा ही अकीदा, जो ये अकीदा रखते हैं, जो ये अकीदा रखते हैं उनके ऊपर हुक्म लगा। अच्छा तेरे पहले बता, तेरे बड़ों का फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, तो हुक्म लगा, इस पर आगे देख नूर हसन, हुक्म लगा, हुक्म। तुझमें हिम्मत नहीं है, तुझमें हिम्मत नहीं है। जैसे ही तो ये हुक्म लगाता है तुझे मालूम है कि तुझे हालत क्या मारेगा। बैटरी पर तो रक्षा को घसीटेगा, ये कुरान हदीस की बात है। तू रक्षा चलाएगा, उसको बैटरी पे घसीटेगा, इधर नहीं है वो, ये कुरान हदीस की बात है। मैंने तुझे मुसलमानों देख लो, ये कितने बेगैरत और बेशरम बेहया लोग होते हैं। पहली बात तो ये लड़ झगड़ रहा था, पहली बात तो ये पहले लड़ झगड़ रहा था, कुत्ते की तरह भौंक रहा था, अब भी कुत्ते की तरह भौंक रहा है, समझे मुसलमानों। और इसमें गाली भी बकी है, इसकी गाली आपने सुनी होंगी, सुनिए ना आपने, ये गाली बक रहा था ना। ये हमारा रजा खान की खोल के बोलो है इसको। जी सद्दाम भाई, आप मेरे साथ लाइन पर हैं, आपने इसकी गाली सुनी? गाली बकी ना इसने? आप जोर से बोलें जरा। हाँ गाली बकी है ना जी। नूर हसन रिकॉर्डिंग मौजूद है। हाँ रिकॉर्डिंग मौजूद है। हमको तो फतवा क्यों नहीं लगा रहा है? अबे फतवा कहाँ पे लगाना है, हमारा रजा खान पे कि तुझ पे? तो जो वो हजरत बता रहे हैं उसको फतवा लगाना, उनका अकीदा है तो उसको फतवा लगा। रक्षा ड्राइवर हजरत कैसे हो गया ये? इसको बोल हेलो। हाँ हेलो इमरान देवबंदी, तुम इतनी देर से नफाजी कर रहे हो। क्या बात है यार। तो फिर मुफ्ती मुफ्तखोर सुन तो ले। जब दूसरे आदमी ने अपना अकीदा वाज़ा कर दिया कि मेरा अकीदा ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से जहाँ चाहें जा सकते हैं, इससे खुली बात और तुझे क्या मिलेगी? तो अब तू हुक्म क्यों नहीं लगाता? ये तो बता दे, तू कैसा मुफ्ती का मुफ्ती है? क्या तुम्हें ये सिखाया जाता है, लफाजी सिखाई जाती है, गाली बाजी सिखाई जाती है तुम्हें देवबंद में? हुक्म लगा, हुक्म लगा। इसका ये अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ब्र अनवर से अल्लाह की अता से जहाँ चाहें अपने उम्मती की किस्मत जगा सकते हैं, जा सकते हैं। तो तू हुक्म क्यों लगा रहे? बात और क्या मिलेगी तुझे? आपने बोलूं? हाँ इस वजह से फोन आपने बोलूं? खामोश रहिएगा, ठीक। इन बाकी चैनलों को भी बंद करवा देना मुंह। सुनो, मैंने जो इसको पहले फोन किया
तो इसको मैंने एक आयत के बारे में पूछा, ये भागा वहां से, फिर फोन काट के तुम लोगों को लाइन पे लिए और बात को बदल कर सामने आ गया। मैंने इसको कुरान पाक की आयत पूछी थी, अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। जब आप इसके लीडर बनकर आए हो ना, आप जवाब दो मुझे, फिर मैं आपको हुक्म लगाता हूँ। ठीक, जब मेरा पहला सवाल ये है, अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क, कि क्या नहीं देखा आपने उस आदमी की तरफ जो लड़ रहा था, जो झगड़ रहा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, उसके परवरदिगार के बारे में। मैंने उसको पूछा क्या तर्जुमा है? देखो, अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क, क्या आपने उस शख्स की तरफ नहीं देखा जिसने इब्राहीम से उसके परवरदिगार के बारे में झगड़ा किया, अल्लाह ने उसे बादशाह दी थी। ठीक, यही तर्जुमा है ना? अब मुफ्ती इमरान देवबंदी मुफतखोर के, देखो मैं मुफ्ती नहीं हूँ, जाहिल आदमी तेरी समझ में ये बात क्या कह रहा है कि ए महबूब क्या तुमने नहीं देखा? यानी इसका मतलब देखा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त वहाँ हाजिर थे, देखा महबूब ने, ये महबूब तुमने नहीं देखा? तो अब जब इसे सुन देख, ये भी तेरी यहाँ भी शिकस्त है। यहाँ बिल्कुल साफ बात वाज़ा हो रही है कि महबूब ने देखा, महबूब वहाँ हाजिर थे। तू बेवकूफ आदमी है, तुझे अकल का पता नहीं है, किसी अपने आलिम को ले, तू कुछ नहीं जानता, तू जाहिल है। अच्छा। अब जब दूसरा आदमी अपना अकीदा साफ वाज़ा कर रहा है, तेरे सामने कह रहा है मेरा अकीदा ये है कि हुजूर, हाजिर और नाजिर की बात चली है, सुन जाहिल, यहाँ बात चली हाजिर और नाजिर की। जब दूसरा आदमी अपना अकीदा बयान कर रहा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के साथ जहाँ चाहें जब चाहें अपने किसी भी उम्मती की खिदमत जगा सकते हैं, उसके यहाँ आ जा सकते हैं, तो अब आप जो है ये मुफतखोर मुफ्ती इमरान देवबंदी, इस पर फतवा लगाइए, हुक्म लगाइए। हुक्म क्या लेगा सामने वाले से? अच्छा, मैं बोलूं? न हुक्म लगाओ, बोलो नहीं, लफाजी नहीं सुनने का आदमी हूँ मैं। अच्छा, मैं हुक्म लफाजी सुनने का आदमी हूँ, हुक्म लगाओ। हुक्म लगाने के लिए बैठा हूँ मैं यहाँ। तुम्हारे बच्ची बात नहीं है तो किसी आप अपने आलिम बोलो, किसी मुफ्ती को, मुफ्ती को तुम्हारे बच्ची बात नहीं है। देखिए सामईन हज़रात, ये है देवबंद का मुफ्ती, ये मुफतखोर का मुफ्ती है इमरान देवबंदी। ये हाजिर और नाजिर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे नूर भाई से, ये उनसे लफाजी कर रहा था और ये गाली बक रहा था, हमने खुद इसकी गाली सुनी। अब ये जब उन्होंने अपना अकीदा वाज़ा कर दिया कि मेरा अकीदा ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की अता से जहाँ चाहें अपनी उम्मती की खिदमत जगा सकते हैं, तो उन्होंने अपना अकीदा जब वादा कर दिया, हाजिर नाजिर की बात चल रही है, तो अब ये हुक्म लगाने से कासिर है, क्योंकि इसे ये मालूम है कि अगर मैंने इसको हुक्म लगा दिया तो मेरे तमाम अकाबिर उल्टे ढंग जाएंगे, ये खुद भी ढंग जाएगा। सामईन हज़रात, आप खुद फैसला फरमाएं और इस जाहिल की, बेवकूफ आदमी की गुफ्तगू आप खुद समाप्त फरमाएं। इतना बड़ा जाहिल कज़्ज़ाब आज़म है, झूठा मक्कार शैतान, और कह रहा खून काट रहे थे, वो नहीं काट रहे थे बल्कि ये काट काट कर किसी को लाइन पर ले रहा था। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने भी हमें लाइन पर लिया, यार ये खून काट कर भाग रहा है, हम हालांकि बोलते नहीं, लेकिन तू शैतान मुझे ये बता दे, मरदूद शैतान, किस कज़्ज़ाब आज़म की औलाद है तू? जब दूसरा आदमी अपना अकीदा वादा कर रहा है, तू हाजिर नाजिर पर बात कर रहा है शख्स से, जब वो अपना अकीदा वादा कर रहा है कि मेरा अकीदा ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं, आ जा सकते हैं। नाजिर का मतलब क्या है कि कहीं जाना, नजारा करना किसी का जाकर, ये हाजिर नाजिर का मतलब होता है। जब वो आदमी अकीदा वादा कर रहा है अपना, तो अब तेरी ज़ुर्रियत में, तेरी देवबंदियत में इतनी जरूरत नहीं है कि तू हुक्म लगा दे। यहाँ तू हुक्म तो लगा, जबान तो खोल अपनी। ऐसा तुझे उल्टा टंगवाता हूँ मैं, ऐसा टंगवाऊंगा कि तू हाथ पैर नहीं हिला पाएगा, तू हाथ पैर नहीं हिला पाएगा। ऐसा लटक जाएगा कि तू हाथ पैर नहीं हिला पाएगा, अपने अकाबिरों को याद करेगा, अकाबिर तेरे बचाने नहीं आएंगे क्योंकि वो खुद जहन्नम में जल रहे हैं। मेरा नंबर ऑन बुला कर तो फिर रिजवी से तेरे से वो जहन्नम में खुद जल रहे हैं, आप वो हिमायत को नहीं आएंगे। मतलब तू जहन्नम में गया था, हुक्म तो लगा, अरे मेरे पट्टे, मेरे पट्टे, हुक्म तो लगा मेरे शेर, ए गीदड़ शेर, ए गीदड़ शेर, गीदड़ शेर, तेरा हुक्म लगा, हुक्म जल्दी से लगा एकदम। अब तो भड़बड़ाएगा कि मुझे बोलने देगा? हुक्म लगा, हुक्म, पहले बोलने नहीं दूंगा तुझे, तो जब तू बड़बड़ाता रहेगा तो बुला ले, अपने किसी मुफ्ती को बुला, मुफ्ती को, तेरा मुफ्ती को हुक्म लगागा, चल बुला, तेरे बच्ची बात नहीं है, तू जाहिल है, तेरा मैं पढ़ा लिखा नहीं, तू जाहिल है, तू जाहिल है, जाहिल के बराबर। अरे जब तू जाहिल है तो क्यों आया बात करने के लिए, क्यों आते हो जलील होने के लिए यार नूर हसन से? क्या तुम्हें आदत बन गई है? अरे कितने बड़े जलील हो यार तुम, क्यों जलील होने के लिए आते हो? अरे क्या तुम्हारी शैतान ने गैरत बिल्कुल खरीद ली? शर्म नहीं है बिल्कुल तुम्हें? आपने बोलो शाही ने क्या खूब कहा है यार कि नजदीक तो आए शर्म ये बिल्कुल महाल है, शैतान ने हर एक की गैरत खरीद ली, तुम्हारी गैरती खरीद ली। अरे जाहिल, जब तू पढ़ा लिखा नहीं है, जब तू जानता नहीं, जब तू हुक्म नहीं लगा सकता, तो क्यों आ रहा बात करने के लिए, जलील होने के लिए? क्यों जलील होने के लिए आते हो तुम?
आऊज़ु बिल्लाहि तो ये शेर तुम्हारे लिए हमने छोड़ दिया है, अकेला शेर तुम्हारी पूरी देवबंदियत के लिए काफी है माशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इसकी उम्र दराज करे। ये अकेला शेर तुम्हारे लिए काफी है। तेरे अंदर, अरे तू बड़बड़ करता रहे, तू हुक्म तो लगा, अरे तू हुक्म लगा, हुक्म लगा, हुक्म लगा, हुक्म। ये दूसरा जो तेरे साथ लाइन पे, इससे लगवा दे हुक्म, ये लगा देगा, चल लगवा, इससे लगवा। को मुफ्ती अगर हो तो तेरा मुफ्त खोर मुफ्ती, तेरे सारे मुफ्ती में मुफ्त खोर हैं सब, तुम्हारे हिम्मत ही नहीं है जो तुमको हुक्म लगा दो। हुक्म लगा, कहाँ गया रे बंदर, ओ देवबंदी काफिर। देखिए सामईन हजरात, ये था इमरान देवबंदी, जो क्या ये देवबंद का मुफ्ती है। ये हमारे नूर हसन भाई मेहमानदारी में मेरे यहाँ आए हुए हैं। मैं मोहम्मद ताहिर रज़ा कादरी बोल रहा हूँ। ये मना भी कर रहे थे इससे बात करने के लिए, मैं कहीं आया हुआ हूँ, मगर ये माना नहीं। इसने हाजिर नाजिर पर गुफ्तगू शुरू कर दी। अब नूर हसन भाई ने इससे वाज़ह तरीके से कह दिया कि मेरा अकीदा ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुबारक में हाजिर हैं, और वो अगर चाहें तो अल्लाह की अता से जहाँ चाहे अल्लाह चाहे उनका चाहे उन्हें भेज सकता है, वो जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, अपने किसी भी उम्मत की खिदमत को जगा सकते हैं। अब जब नूर हसन भाई ने अपना अकीदा वाज़ा कर दिया, तो अब इसकी हिम्मत इतनी नहीं हो रही कि ये हुक्म लगा दे। आप लोग खुद समाज फरमाएं और खुद फैसला करें, और इन देवबंदरों से, इन वहाबियों से अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाएं। ये देवबंदी और वहाबी ईमान के लुटेरे हैं, डाकू हैं, ये मजबूत शैतान इंग्रेज की पैदावार है। दूसरे नंबर से कॉल कर रही है। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।